I welcome you everybody in the lab. Okay, so you can see that this is the red litmus and this is the blue litmus. Okay, now inside this you will see that there are strips of these papers. This is called the red litmus and likewise it is the blue litmus. Okay, so one by one we are going to see that how does it color changes in different medium. Okay, so we are having some different kind of solution with us. As you can see that it is the HCl, hydrochloric acid. Okay, so I'm just going to take it out in one of the container. So this is the HCl I have taken out in one container. Okay, and now the other chemical is the NaOH. NaOH, you know that this is the sodium hydroxide, one of the very strong base, and actually this is found in the solid form. So we have to just make its solution. So I'm just taking out few parts of this one. See, so I've taken out. This is in the form of solid form. Now what I'm going to do, I'm going to make a solution by adding some water in this one. Okay, so I have just added water in this one. So you can see that this in my right hand it is the NaOH, sodium hydroxide, and my left hand it is the HCl. Okay, now one by one we are going to check that how the color of the this one pH not, this is the litmus paper, it's going to change. So you see that I'm having one red litmus paper and one blue litmus paper. Now I'm going to just put in the HCl, the acid. So I have just inserted this one. Now after this you'll see that the color of red litmus is continue to red, but the color of blue litmus changes to red. So just now I told you that in the acidic medium the blue litmus changes to red. Okay, now next once again we are going to check with the blue litmus and red litmus in the basic solution. So when we have inserted it in the basic solution, you see that the blue color continue to blue, but the red has changes to the blue. So we can say that in the basic medium the red color of the litmus changes to blue in color. Okay, now I wanted to show you in the neutral solution also. This is the water, that the fresh water, tap water I have taken. Okay, now I'm going to just put one red litmus and blue litmus in this one. So I'm just going to put red litmus and blue litmus in this. Now you see that in the case of the neutral solution, the color of blue litmus remain blue and the color of red litmus changes to continue to red only. So what we conclude that if the color of blue litmus changes to red, it is acidic. If the color of red litmus changes to blue, it is basic, and if the red litmus and blue litmus continue its color, it means it is neutral solution, means it is not acidic nor basic, it is neutral in nature. Okay, now again we are going to come back to our study. Thank you. टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जब रिएक्शन हो रहा है एसिड का मेटल के साथ में, तो यहाँ पे मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, तो उस गैस को हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, और ये टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पहले मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ. देखो मेरे पास दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स हैं. एक टेस्ट ट्यूब में मैंने पहले डाइल्यूट एसिड लिया है और उसमें ये आप देख सकते हो ब्लैक कलर का, तो ये मैंने इसमें डाला है जिंक. तो जैसे यहाँ पे जिंक को डाला है, ये दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स हैं ए और बी, तो आप देखोगे इससे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे गैस का फॉर्मेशन होगा जो कि हाइड्रोजन गैस होगा. ठीक है, तो अब देखो ये दूसरा टेस्ट ट्यूब जो है मैं जस्ट इसके ऊपर इन्वर्टेड फॉर्म में रखता हूँ, तो ये बी वाले टेस्ट ट्यूब में काफ़ी ज़्यादा गैस कलेक्ट हो जाएगा थोड़ी देर के बाद. अब जैसे आप एक बर्निंग मैच स्टिक लाओगे इस बी टेस्ट ट्यूब के पास, तो आप देखोगे एक साउंड आएगा पॉप. तो ये जो पॉप साउंड आता है यही आपको कंफर्म करता है कि यहाँ पे जो गैस का जो फॉर्मेशन हुआ, जो गैस था वो था बिल्कुल हाइड्रोजन. ठीक है, तो देखो मैं इसको पढ़ता हूँ. टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन कि व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ एसिड इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैसेस. बिल्कुल मैंने आपको बताया कि मेटल कभी भी रिएक्ट करता है एसिड के साथ में तो क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन गैसेस. व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट प्रोड्यूसेस अ पॉप साउंड. और जैसे एक बर्निंग मैच स्टिक को मैं उसके पास लाता हूँ तो वो बिल्कुल एक पॉप साउंड जैसा आवाज़ आएगा. दिस पॉप साउंड कन्फर्म द गैस इज हाइड्रोजन. और ये पॉप साउंड जो है ये बिल्कुल कन्फर्म करता है कि ये जो गैस है ये बिल्कुल हाइड्रोजन है. ठीक है, तो इस चीज़ को आपको देख करके बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज हो रहे होंगे कि सर ने तो बता दिया कि ऐसा होता है तो ऐसा पॉप साउंड होता है ना, ऐसा करेंगे तो हम लोग पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा. फिर आपके दिमाग में आ गया पॉप साउंड कैसा होता है, नहीं होता है. तो इस चीज़ को अच्छे से देखने के लिए चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ लैब में. वेलकम बैक अगेन इन द लैब. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि लैब में हम लोग हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग कैसे करते हैं. तो हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग के लिए सबसे पहले हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा लैब में हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास कुछ केमिकल्स है, आप देख सकते हो. ये हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, कुछ टेस्ट ट्यूब्स हैं
और ये हमारे पास एक जिंक मेटल है, जिंक मेटल, ठीक है। तो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करने वाले हैं मेटल के साथ और हम लोग हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद उसका हम लोग टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक टेस्ट ट्यूब लेता हूँ और इस टेस्ट ट्यूब में मैं कुछ पहले वाटर लेता हूँ, ठीक है, कुछ मैं इसमें वाटर लेता हूँ। तो मैंने इसमें आप देख सकते हो कुछ वाटर ले लिया है इसमें, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा इसमें मैं सल्फ्यूरिक एसिड डालूंगा, ठीक है। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास लैब में प्रेजेंट है ये काफ़ी कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, तो इसलिए हम लोग हमेशा प्रिकॉशंस लेते हैं ताकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आए इससे। अगर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाओगे तो आपका हैंड बर्न कर सकता है, इसलिए हम लोग प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं हम लोग लैब में एसिड्स को यूज़ करते समय, ठीक है। आप देख रहे हो मैंने प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके रखा है, ठीक है। अब उसके बाद में अब देखो कि मैंने क्या किया, पहले वाटर लिया और एसिड का इसमें डाइल्यूशन बना लिया, ठीक है। अब मेरे पास ये देख रहे हो कि ये मेरे पास एसिड जो है ये डाइल्यूटेड फॉर्म में है, ठीक है। अब रिएक्शन के लिए हम लोग लेते हैं जिंक। तो जिंक देखो ये आपको मेटल फॉर्म में है, जिंक मेटल है, देख सकते हो ये जिंक मेटल है आपके पास में अवेलेबल। तो ये जिंक के पीसेस को मेरे को इसमें डालना होगा ताकि ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा आपको पता है हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, तो उस हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करना पड़ेगा मुझे एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। और टेस्टिंग के लिए मुझे चाहिए होता है बर्निंग मैस्टिक, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे एक बर्निंग कैंडल लेके रखा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो इस टेस्ट ट्यूब में मैं इस जिंक मेटल को मैं डालने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है और मैं जिंक मेटल को इसमें डालता हूँ। मेरे पास बहुत सारे और छोटे पीसेस भी हैं, छोटे पीसेस को डालोगे तो बहुत जल्दी रिएक्शन स्टार्ट होगा। देखोगे जैसे मैंने इसको इसके अंदर डाला है तो आप देखोगे इसके अंदर रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। देखो इसके अंदर रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है और आप देखो बहुत सारे से बबल्स निकल रहे होंगे। ये बबल्स और कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन गैसेस है। तो मैं इस गैस को इस इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में अब मैं इसमें कलेक्ट करने वाला हूँ। तो इस इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। आप देख सकते हो कि इसमें बबल्स जो हैं बहुत तेज़ी से फॉर्म हो रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन बहुत रैपिड है, ठीक है। और आपको बिल्कुल इसको ऐसे इसमें हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करना है और ये लगभग आपको 3 से 4 मिनट कलेक्ट करना होगा ताकि इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में प्रॉपर अमाउंट में आपको हाइड्रोजन गैस का कलेक्शन हो। अगर हाइड्रोजन गैस का कलेक्शन प्रॉपर अमाउंट में होगा तो आपको पॉप साउंड बहुत ही क्लियरली अच्छे से सुनाई देगा, ठीक है। तो हम लोग इसको 3 से 4 मिनट तक इसको ऐसे होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है इसमें काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोजन गैस अब कलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। पॉप साउंड, दिस इज़ ओनली कॉल्ड द पॉप साउंड। आपने सुना ये क्या साउंड था, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉप साउंड। तो आई होप जो भी मैंने आपको थ्योरी में बताया था ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा प्रैक्टिकल में। और इसको अगर आप थोड़ी देर तक और होल्ड करके रखोगे तो हम लोग और भी गैस कलेक्ट कर सकते हैं। और आप इसमें अगर ध्यान से आप देखोगे तो इसमें देखोगे ब्लैक कलर का जो आप देख रहे हो सब्सटेंसेस, ये और कुछ भी नहीं है बल्कि ये आपके लिए जिंक सल्फेट है, ZnSO4, ठीक है। और ये रिएक्शन बिल्कुल तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके आपको जिंक सल्फेट ना बना दे, ठीक है। तो अगर आप इसको फिर से एक बार सुनना चाहते हो, आई होप आप फिर से एक बार इसे सुनना चाहते हो, तो मैं थोड़ी देर और इसे कलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब जब इसे थोड़ी देर तक और कलेक्ट करोगे तो बिल्कुल आपको वही साउंड फिर से सुनने को मिलेगा। तो ये जो साउंड था इसी को हम लोग बोलते हैं पॉप साउंड। तो मुझे लगता है कि 4 से 5 मिनट अब हो चुके हैं, तो एक बार हम लोग फिर से इसे ट्राई करते हैं पॉप साउंड। दिस इज ओनली कॉल्ड द पॉप साउंड। तो अब आप एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड द एक्सपेरिमेंट। नाउ अगेन कमिंग बैक टू आवर स्टडीज़। तो आई होप यू हैव एंजॉयड द एक्सपेरिमेंट और आपने देखा कि हमने लैब में कैसे हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस किया और उसका टेस्टिंग कैसे किया। आई होप यू एंजॉयड द एक्सपेरिमेंट, ठीक है।